Namaskar students. This video for class 9th lesson number 2 First World War and Russian Revolution. In previous video we had studied about the factors responsible of the First World War. In this video we will study the First World War and the effects of the First World War. So the First World War had started on 1st August 1914 and there are two groups in the First World War. One group is called the Axis nation and the second one is called the Allied nations. 24 nations supported the Allied nations and the 4 nations supported the Axis nations. दो ग्रुप पड़ गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए और एक ग्रुप का नाम था Allied nations और एक ग्रुप का नाम था Axis nations. In the First World War, the Germany has become a very strongest nation. जर्मनी ने पूरी तरीके से तबाही मचा दी थी. जर्मनी वो सबके ऊपर भारी पड़ रहा था. Germany destroyed and many nations. Germany destroyed the many ships and many army persons of the rival nations. The Germany ruined also the French. फ्रेंच को भी उसने तबाह कर दिया. And Germany has also destroyed the ships and so many peoples and so many civilians also died in these incidents. And also Germany has reduced the poisonous gas, so that's why the so many peoples and the army person and the civilian persons also died in the First World War. So फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी सबके ऊपर भारी पड़ रहा था. फ्रेंच को उसने पूरी तरीके से बराबर उसने फ्रेंच जो आर्मी थी उसको तबाही मचा दी थी फ्रेंच आर्मी के अंदर. देन आफ्टर वन इंसिडेंट इंपोर्टेंट that has happened in the First World War in 1917, the Russian Revolution has started. And what is the Russian Revolution? We will study the later what is the Russian Revolution. Russia was in the First World War, but the Russian Revolution started. So the Russia left the First World War in 1917. For example, कि भी हम बाहर हमारा घर है और घर से बाहर हमारे कुछ बाहर है वो वहां पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है और हम उस प्रॉब्लम के अंदर वहां पे गए, लेकिन हमारे घर के अंदर ही कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम को वहां से अधूरा छोड़ के हमको अपने घर के लिए, अपने घर के प्रोटेक्शन के लिए या तो उसको अपने घर के लिए हम वापस आ जाते हैं. तो रशिया में भी ऐसा हुआ. रशिया ज्वाइन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बट इन 1917 द रशियन रेवोल्यूशन स्टार्टेड. And what is the Russian Revolution? We will study later. So the Russia left the First World War. Russia withdrew the First World War. So that's why the America entered in the First World War. But the Germany जो सरेंडर करने का नाम नहीं ले रहा, जर्मनी बहुत ही पावरफुल तरीके से सारे नेशंस को क्रश कर रहा था. इवन जर्मनी ऑल्सो ड्रॉन द अमेरिकन स्टीमर. The name the American steamer named the Lusitania is a very powerful steamer, but Germany also drawn that steamer. Germany ने उस steamer को भी उसको destroy कर दिया and the 147 American soldiers died in these incidents. So then after America legally joined in the First World War, and then after the joining the America in April 1917, the many nations had also joined in the First World War. For example, Panama, Greece, Cuba, China, etc. nations joined the Allied nations in the American group. So the Allied nation is become a very strong. जो Allied nation जो था, जो जर्मनी अकेला सबके ऊपर भारी पड़ रहा था, फिर बाद में अमेरिका के स्टीमर को जर्मनी ने जो पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर लिया. सो दैट्स व्हाई द अमेरिका ज्वाइन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड देन आफ्टर द मैनी स्मॉल नेशंस आल्सो ज्वाइन इन द अलाइड नेशंस एंड द सिनेरियो हैज बिकम अ चेंज्ड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. जो जर्मनी का पल्ला जो भारी था अब तक, अभी जर्मनी धीरे धीरे वीक पड़ने लगा बिकॉज ऑफ द एंटरिंग ऑफ द अमेरिका and different nations in the First World War. The Bulgaria joined in the September 19, Turkey, Austria, it is not a Australia, it is a Austria. Austria is also joined in the October 1918.
the Austria nation of the Europe continent also joined in 1918. So that's why these allied nations is become a very strong. और जर्मनी का सिचुएशन चेंज हो गया, द सीनियरियो हैज बीन चेंज. जो केजर विलियम जो था, हमने जो पढ़ा था, द जर्मन चीफ केजर, जो वर्ल्ड लीडर बनने की बहुत ही बड़ी ख्वाहिश थी उसकी, दिस जर्मन केजर आल्सो रैन अवे फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एंड द जर्मनी हैज टू साइन द सीज फायर, एंड thus in 1918 the first world war came into an end after the surrender of the Germany. जर्मनी ने सरेंडर किया, सीज फायर की ट्रीटी हुई, एक संधि हुई, and then after that is the ending of the first world war. So this is regarding about the first world war. The short note can be asked in your exam about the first world war. Now also we will study the important topic, the effects of the first world war. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इफेक्ट हुआ, उसकी वजह से क्या परिणाम है, उसके क्या रिजल्ट निकले आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सो वी विल स्टडी द शॉर्ट टर्म इफेक्ट आल्सो एंड द लॉन्ग टर्म इफेक्ट आल्सो. तो फर्स्ट द इफेक्ट्स, द डायरेक्ट इफेक्ट्स वी कैन अंडरस्टैंड द डिस्ट्रक्शंस ऑफ मैन एंड मटेरियल. जान माल का नुकसान, डिस्ट्रक्शंस ऑफ मैन एंड मटेरियल. इस दुनिया के अंदर एक साथ जितने लोग जो नहीं मरे थे अभी तक, वो एक साथ इतने लोग इस घटना के अंदर मर गए. 6.5 करोड़ पीपल द ज्वाइन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. 6.5 करोड़ लोग जो थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर पार्टिसिपेट, 6.5 करोड़, उसमें से 1 करोड़ पीपल डाइड एंड 2 करोड़ पीपल इंजर्ड एंड 70 lakhs पीपल became the permanent handicapped. So this is the destructions of the man. And also the expenditure of this first world war is also very quite high. खर्चा बहुत था उसका, तो कोई हिसाब ही नहीं लगा उसका, इतना एक्सपेंडिचर हुआ. स्टारवेशन, भूख मरा हुआ, और बहुत ही सारे उसके जो डायरेक्ट जो नेगेटिव इफेक्ट है, दैट इज द डिस्ट्रक्शंस ऑफ द मैन एंड मटेरियल आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सेकेंड, द सोशल चेंज. द मेल पर्सन, जो पुरुष जो थे, दैट इज अ वॉर साइड, इट इज अ फ्रंट ऑफ द वॉर साइड. सारे यूरोप कॉन्टिनेंट 6.5 करोड़ जो एक ही कॉन्टिनेंट के जो मेजर जो पीपल जो थे 6.5 करोड़, वो सारे एंगेज थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और उसमें से कम अप्रोक्सीमेटली 2-3 करोड़ जो लोग थे वो मर चुके थे. सो देयर आफ्टर द वुमेन हैज गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी. समाज के अंदर वुमेन को आगे आना पड़ा. They took the responsibility on their shoulder. They started the job. हम देखते हैं कि यूरोप कॉन्टिनेंट जो है वो वहां से जो वुमेन एम्पावरमेंट वहां से शुरू इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. जो सोशल चेंज, समाज के अंदर एक परिवर्तन हुआ, जो अभी जो एक पुरुष जो गाइड कर रहा था समाज को और सारी संस्थाओं को, नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी केम ऑफ द सोसाइटी ऑन द शोल्डर ऑफ द वुमेन. वुमेन घर से बाहर निकली, जॉब स्टार्टेड किया, उन्होंने फ्रेंचाइजीज को ज्वाइन किया, दे स्टार्टेड द वर्क इन द आउटसाइड ऑल्सो. देयर इज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑल्सो, द स्कैरसिटी ऑफ द डिफरेंट मटेरियल्स, द नेसेसिटी मटेरियल्स ऑफ द स्कैरसिटी. अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ गई. स्टारवेशन, लॉकआउट्स, स्ट्राइक्स, दीज आर ऑल्सो द इफेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. नेक्स्ट, द ट्रीटी ऑफ Versailles in June 1919. It is very important. It can be also asked in a separate question. The Versailles Treaty of the First World War. Versailles की संधि हुई, एक समझौता हुआ, वो क्या था? We will study in this topic. That is the Versailles Treaty in June 1919. So the Germany surrender in the First World War. जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो था वो पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया. And the peace process has started in the Paris, in the city of the Paris. And in this Paris, there is one palace, the Mirror Palace. So in this Paris city, there is 58 commissions and 145 sessions held to sort out of the matter of the First World War. In the Mirror Palace, एक मिरर पैलेस था वहां पे जो वर्सेल्स के अंदर
वहां पे उनकी एक मीटिंग हुई। ये सारे जो नेशंस थे, जो जीते हुए नेशंस और हारे हुए नेशंस, एक मीटिंग हुई। और आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हाट इज द सिनेरियो? सो इन दिस मीटिंग द 4 पॉइंट्स हैज कम आउट। फर्स्ट, द रीजनल अरेंजमेंट। रीजनल अरेंजमेंट मतलब जो भी वॉर से जितने जिसने जो जीता था, जो हारा था, वो एक अरेंजमेंट, कौन कहां पे रूल करेगा, कौन किस तरीके के ऊपर कंट्रोल करेगा, किसके ऊपर वो शासन करेगा, किसके ऊपर कहां पे कौन से देश का जो रूल्स एंड रेगुलेशन चलेगा। दैट इज द रीजनल अरेंजमेंट इन द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, दैट इज अ रिडक्शन इन ट्रूप्स एंड डिजार्मेंट प्रोसेस। रिडक्शन ऑफ द ट्रूप्स एंड डिजार्मेंट। डिजार्मेंट का मतलब होता है निशस्त्रीकरण। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ क्योंकि सब आपस में कंपटीशन में, फिर झगड़ा, आपस में लड़ाई हुई, और लड़ाई में सबने डेडली वेपन्स सबने प्रोड्यूस कर लिए थे, बहुत ही घातक हथियार बना दिए थे। इसलिए दैट इज अ डिजार्मेंट, उस हथियारों का नाश करना और उसको डिस्ट्रॉय करना। दैट इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड, द अरेंजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गेन्स एंड वॉर फाइन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गेन्स, कि जो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई जीता हुआ कोई लोग पर्सन होता है, तो उसको अपना कितना हिस्सा मिलेगा, क्योंकि अलाइड नेशंस जो था वो बहुत ही बड़ा एक ग्रुप था, तो कौन से नेशंस को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, वो क्या प्राप्त करेगा, कौन सा रीजन मिलेगा, कितना उसको पैसा मिलेगा, क्योंकि वो विनिंग साइड पे है। तो दैट इज द गेन्स एंड ऑल्सो द वॉर फाइन। और जो हारे हुए जो नेशंस है उनके ऊपर पनिशमेंट एंड फाइन, एंड दैट इज ऑल्सो द पॉइंट in this meeting, and other provisions of the first world war. So this treaty is known as the Treaty of Versailles। और ये वर्सेल्स ट्रीटी जर्मनी अपनी लाइफ के अंदर, जर्मनी जब तक जर्मनी इस वर्ल्ड के ऊपर है, ये वर्सेल्स ट्रीटी को कभी नहीं भुला सकता, बिकॉज इन दिस ट्रीटी दैट इज अ वेरी बैडली वी कैन से दैट इज द ह्यूमिलिटेशंस ऑफ द जर्मनी। जर्मनी को बुरी तरीके से इस फर्स्ट ये जो वर्सेल्स ट्रीटी है उसमें जर्मनी को पूरा डाउन किया गया। इन दिस मीटिंग द अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, द ब्रिटिश प्रेसिडेंट लॉर्ड जॉर्ज, द फ्रेंच प्रेसिडेंट क्लेमेंको एंड द इटालियन प्रेसिडेंट ऑरलैंडो हैज ऑर्गेनाइज्ड दिस मीटिंग ऑफ द वर्सेल्स ट्रीटी। एंड देन आफ्टर जर्मनी has found the responsible of the first world war। ये सारे नेशंस ने मिलकर जर्मनी के ऊपर ब्लेम किया कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये जितना भी डिस्ट्रक्शन हुआ, जितने भी लोग मरे, जितने भाई एक्सपेंडिचर हुआ, जितना भी डिस्ट्रक्शन हुआ, दुनिया में जो तबाही मची, द जर्मनी इज द रिस्पॉन्सिबल। एंड सो दैट्स व्हाई जर्मनी के ऊपर वॉर फाइन लगाया 6.5 बिलियन पाउंड। दैट इज द वॉर फाइन इन द जर्मनी। इससे भी वो रुके नहीं, और आगे भी जर्मनी का रूबर रीजन, द रूबर रीजन ऑफ द जर्मनी दैट इज द गिव टू द फ्रांस। द राइन रिवर ऑफ द जर्मनी ओपन फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉर द सी रूट। जैसे जर्मनी को पूरी तरीके से उन्होंने, सब नेशंस ने मिलकर जर्मनी का पूरा तहस नहस कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। जो राइनलैंड जो रीजन था जो जर्मनी का, दैट इज दिस रीजन दैट इज गिवन टू द फ्रांस फॉर द 15 ईयर्स। फ्रांस ने अपना बदला ले लिया। जो शुरुआत में हमने देखा था इन द फर्स्ट सीडेन वॉर, जर्मनी डिफीटेड द फ्रांस एंड जर्मनी कैप्चर्ड द 2 provinces of the French, and that 2 provinces that is the Alsace and Lorraine, that ये 2 प्रदेश जो थे वो जर्मनी ने फ्रांस से हड़प लिए थे, वो भी उसको फ्रांस को वापस दे देना पड़ा। तो जर्मनी ने बहुत खोया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। देन आफ्टर द कोल एंड द आयरन प्रोडक्शन हैज टू गिवन एनुअली टू द विनिंग नेशंस, फ्रेंच एंड टू द अलाइड नेशंस। उस जर्मनी के अंदर जो भी सालाना कॉल और आयरन जो प्रोडक्शन जो था, वो सारे जो विनिंग नेशन है वो भी जर्मनी को देना पड़ा। सो दीज आर द वर्सेल्स ट्रीटी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दैट इज द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। वर्सेल्स की संधि, वर्सेल्स की ट्रीटी क्या है, और इसके अंदर जर्मनी को क्या क्या देना पड़ा और उसके ऊपर क्या फाइन लगाए गए, दैट इज इन द वर्सेल्स ट्रीटी। एंड द लॉन्ग टर्म इफेक्ट, दूरगामी परिणाम। आप लोग जानते होंगे भाई
फॉर एग्जाम्पल झगड़ा हुआ और हम दो जन आपस में झगड़े, किसी एक जन ने किसी को मारा, और वो जो मार खाया हुआ पर्सन है वो अभी क्या लेगा? रिवेंज, बदला। सो द जर्मनी बदले की आग में जल रहा था, इसलिए हम कह सकते हैं द सीड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज ग्रोन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इन द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दूसरे विश्व युद्ध होने ही वाला है वो पता चल गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही, बिकॉज दैट इज द वेरी बैडली ह्यूमिलिटेशंस ऑफ द जर्मनी। तो जर्मनी एक बदले की आग में जल रहा था। दे वांट टू टेक द रिवेंज विद द अलाइड नेशंस इन द आफ्टर the Russia, that is the couldn't get the place in the leagues of nations. After the first world war, one organization has been established, and that organization is named the leagues of nation, जिसका काम था कि भाई सारे नेशंस के ऊपर कंट्रोल करना और युद्ध की परिस्थिति, that is cannot started the atmosphere of the war, और उसको लुक आउट करने का था, and that is the leagues of nation. But two mistake has been done in the world. लीग्स ऑफ नेशन के अंदर दो नेशंस को ज्वाइन नहीं किया गया. दिस इज रशिया, दैट इज couldn't get place in the leagues of nation, and America is also didn't join in the leagues of nations. तो उसके परिणाम से ही पता चल जाएगा कि भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने ही वाला है, क्योंकि दो बड़े राष्ट्र, दो पावरफुल कंट्री अमेरिका एंड रशिया, दैट इज couldn't join in the leagues of nations. थर्ड, जर्मनी जो बदले की आग में जल रहा था, तो लीग्स ऑफ नेशन का फिर कंट्रोल नहीं रहा, ना तो जर्मनी के ऊपर, ना तो अमेरिका के ऊपर, ना तो रशिया के ऊपर. सो वी कैन से द सीड्स ऑफ द सीड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैज ऑलरेडी, दैट इज ग्रोन इन द रिजल्ट, इन द effects of the first world war. So this is a long term effect. So we can say the second world war is the long term effect of the first world war. एक झगड़ा हुआ तो दूसरा झगड़ा होने ही वाला है, एक ने जो मार खाया है वो बदला लेगा ही. So these are the effects of the first world war. Very important topic. So in this video we had studied the two topic, the short note of the first world war and the effects of the first world war. In the next video we will study the Russian Revolution, जो हमने यहाँ पे अधूरा छोड़ा था. 1970 रशिया विथड्रॉन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो क्यों चला गया, तो वो क्या है, दैट इज वी विल स्टडी द रशियन रेवोल्यूशन, एंड वी विल आल्सो स्टडी अबाउट द लीग्स ऑफ नेशन. लीग्स ऑफ नेशन क्या है, कैसे बना, क्यों बना, और उसका पर्पस क्या है, दैट वी विल स्टडी इन अवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.